Singh, the co-host in the celebration, requests everyone to please stand at attention as we are unfurling the flag by marking the movement of Democratic Republic and also to sing national. Thank you everyone. Please take your seat. Moving forward with the same pride, let us all witness the introduction. We speak to Kanyakumari's shore. India's glory will forever soar. Good morning to all, respected principals, sir, teachers, and my dear friends. We have gathered here to celebrate one of the most significant days in the history of our nation. That is the 76th Republic Day of India. On this auspicious day, I feel privileged to stand before you to speak about the importance of this day and what it means to us as proud citizens of India. 26th January 1950 was the day when India truly became a sovereign democratic republic. It was on this day the Constitution of India, drafted under the visionary leadership of Dr. B.R. Ambedkar, came into effect. The Constitution, which is the longest written constitution in the world, not only guarantees us fundamental rights, but also reminds us of our duties as citizens of India. It is the guiding light that unites our diverse country and upholds the values of justice, liberty, equality, and fraternity. We, the people of India, is how our constitution begins. It declares India as sovereign, socialist, secular, democratic republic. Let us pledge to uphold the values enshrined in our constitution. We promise to respect the principles of justice, liberty, equality, and to work tirelessly for the unity, integrity, and progress of our nation. Our constitution is our strength. Let's honor it with unity and strengthen our nation. Jai Hind, Jai Bharat. Yes, true my friend. India is the world-known secular country with the strongest democracy. Enjoy the rightful fundamentals and to extend our celebration, may I call our next performance by a dance group of class 11 choreographed by Bhavna Ma'am, our dance teacher. लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ऐ वतन ऐ माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा हिंदुस्तां, जागा
हमारी जीत का प्रतीक है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक भावना की जीत का भी प्रतीक है। आज हम सब अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम है और इसकी आत्मा सदैव की आत्मा है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसने हमारे देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। उस समय से लेकर अब तक हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन की हुकूमत से आजाद हुआ, तो उस वक्त भारत के पास स्वयं का कोई संविधान नहीं था। काफी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक संविधान प्रपत्र तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 में इसे पूरी तरह लागू किया गया। यह दिन हमें अपने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के महत्वपूर्ण मूल्यों की याद दिलाता है। इस दिन हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनके बलिदानों के कारण आज हम अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने संविधान का पालन करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आइए हम सब संकल्प लें कि संविधान के प्रति समर्पित हम सबको हो जाना है। संविधान के प्रति समर्पित हम सबको हो जाना है। गणतंत्र दिवस पर अपने भारत को उन्नत राष्ट्र बनाना है। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा आगे मत जाना।
very good morning to honorable principal sir, teachers and students. Today we stand proud and are gathered to celebrate the 76th Republic Day. This is the historic day our country took birth as a republic. It is a day to rejoice India's success. On 26 January 1950, Dr. B.R. Ambedkar, with the drafting committee, framed the Constitution of India, blessing her with her own supreme law. Our Constitution governs the whole nation by binding the legislature, executive, and judiciary to establish control. Our beloved India has came through a long, marvelous journey, achieving great prosperity on the way. So, as we all bow to our Tiranga, let be the symbol of our shared aspirations and commitments. This year, the government is celebrating Republic Day with the theme of Swarnim Bharat, Virasat or Vikas, which means Golden India, Heritage and Development. It aims to portray India's progress and accomplishments in the wheel of its diverse culture. Republic Day holds much more value than just a national holiday. It reminds us the true meaning of the word republic. It is a commemoration of the establishment of true order in the country. It was no easy task framing our constitution. So let us all pay tribute to the leaders who worked tirelessly to secure the fate of our lands. While our law ensures the rights, we must never forget to obey the duties it expects. As Mahatma Gandhi once said, if we all discharge our duties, rights will not be far to seek. So let us all take an oath to be the part of our nation's rapid development for a better India for our future generations to live in. So let there be known, on this day of pride, let's take a vow to serve our nation here and now. In unity and peace, may we stay as we celebrate this Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat! Thank you, dear friend. Hold on your breath, everyone, as we are moving forward to see our next cultural event of today. Second dance performance choreographed by a dance teacher, Bhavna Ma'am. Oh
छात्र, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। यह वे दिन था जब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 26 जनवरी 1950 को भी हमारा संविधान लागू हुआ था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ नदियों में सरस्वती, यमुना और गंगा बहती है और हाथों में तिरंगा लहराता है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल गंगा कहलाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की चरण स्थली बन जाता है और 7 समुद्र पार भी परदेशियों को अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के पुकारता है, अपने ब्रदर सिस्टर कह के पुकारता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आज भी शहीदों की आवाज गूंजती है और सीने पर गोली खाते हुए लहूलुहान देशभक्त भूमि पर गिर पड़ते हैं, परंतु कोई राग नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। दिख रहा है तो बस एक अलौकिक देश और उस देश में एक अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रफुल्लित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधुओं संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारी देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ का संविधान ना रचा जाए। अतः 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू हुआ। संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लागू हुआ, परंतु अभी भी भारत के सामने कई ऐसी विषम परिस्थितियां थी जो मानव के सपनों को खंडित कर देती और रोते हुए भारत का बस एक ही महत्व रह जाता, क्या रीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का अर्जुन मौन है, अपमान में तो द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है, युग के अर्जुन का तीर उठाने गीता का फरमान है, अब गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की गरिमा को बनाए रखने का कर्तव्य हम सबका है, जिसके लिए ये अति आवश्यक है कि हम सब अपनी सभ्यता, सांस्कृतिक, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनीतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, पाश्चात्य तंत्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है। संविधान को प्रबंध, सशक्त, प्रबल और प्रभावशाली बनाने का अधिकार किसी को है तो वो सिर्फ हम देशवासियों को है। हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना है जो निर्भय, निष्पक्ष, भ्रष्टाचार रहित हो। तब हम ये कहने में पूर्ण समक्ष हो जाएंगे कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलगता जाएगा, हर प्रश्न सुलगता जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे यह अनुरोध करूंगी कि हम सबको अपने देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके और तरक्की की राह पर जाने का संकल्प ले और बस मन में यही भाव रखें, इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची देश से नारी है, जात पात, भाषा और धर्म का बीच पनपने ना देंगे, अभिन्न धारों पर हिंदुस्तान को बंटने ना देंगे, एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र उपासक बच्चे बनके सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत। Never given any chance in the histories for anything, not even to cast the vote for a vote. Oh, how crucial that was. But today, we girls are so empowered, for which I would like to call Bamboo Dream by Sarita Ma'am with a huge round of applause among us.
अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अब निशान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला। Give a huge round of applause to welcome our principal, sir. Over to you, sir. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रिय पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। सबसे पहले आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इसी तरह हमारा देश प्रगति करता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। समय के अभाव में ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संविधान क्यों? डू यू नो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे आप स्कूल आते हैं, क्लासरूम में आते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप आएंगे, सीधे क्लास में जाएंगे, आपकी अटेंडेंस होगी,
आप डिसिप्लिन में रहेंगे, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसी तरह जब आप रोड पे चलते हैं तो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप लेफ्ट साइड में चलेंगे, हेलमेट लगाएंगे, राउंड अबाउट पे लेफ्ट से टर्न लेंगे, तो एक सेट ऑफ रूल्स होता है। उसी तरह जब 1947 में देश आजाद हुआ तो यह तय करना जरूरी हुआ कि हम इस देश को चलाएंगे कैसे। प्रेसिडेंट होगा, किंग होगा, या प्राइम मिनिस्टर होगा, या एरिस्टोक्रेसी होगी, मोनार्की होगी, डेमोक्रेसी होगी, किस रूल्स एंड रेगुलेशंस से इस कंट्री को चलाएंगे। तो 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी सन 1950 तक इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया गया। और आप जानते हैं इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली बनी थी with the representatives from all over the country, from all religions, trust, faith। उन सब ने मिलके दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने के बाद एक बहुत सुंदर, मजबूत सेट ऑफ रूल्स, जिसे हम आज कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बना के दिया। और उसी के बाद से उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन से ये कंट्री चल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, गरीब हो, अमीर हो, वो इस देश के सर्वोच्च पद पर हो सकता है। और आपने देखा भी होगा हमारे देश में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स अलग अलग धर्मों से बने, अलग अलग आदिवासी भी प्रेसिडेंट हैं अब हमारे। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबसूरती थी कि एनीबडी, एनी पर्सन ऑफ दिस कंट्री कैन बी द हाईएस्ट पोजीशन। एंड द सेकेंड मोस्ट गुड थिंग अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज that rules and regulations will be same for each and everybody। चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वही होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यूजुअली जो प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं उनको थैंक्स मैं कर देता हूं, और जो टीचर्स इन सब बच्चों को चुपचाप बैठाते हैं वो रह जाते हैं। तो आज सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स who are looking after the discipline, making the children sit silently so that everybody can enjoy the program. So thank you all the teachers. Please clap for the teachers, those who are looking after the students. For the decoration, I would like to thank Nidhi ma'am and the students who helped her, Alina, Jivika, Ananya, Avnish, Vipul, Priya, Avni, my guides who helped me all the way, Harsh and Ranveer, teachers who prepared the speeches, Vishakha ma'am, Tabassum ma'am, Kanchan ma'am, Poonam ma'am and Sonia ma'am, and of course जिन्होंने इस रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुतियां तैयार की, काफी टाइम लगाया, संडे को भी काम किया, आफ्टर स्कूल भी काम किया, बिफोर स्कूल भी आके काम किया, डेडिकेशन के साथ भावना मैम, हरिंदर सर एंड सरिता मैम, थैंक यू सो मच। एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंसेस and such a nice, bright, sunny day. So once again, my hearty congratulations to each and every one of you on this 76th Republic Day. Thank you.